Good morning, dear students. Today, in chemical thermodynamics, the topic is thermochemistry. I will like to talk about enthalpies of physical changes, means enthalpy change during phase transformations. As you know, that solid can be converted into liquid, liquid can be converted into solid, liquid can be converted into gas, solid also can be converted into gas. These transformations you are studying from very beginning of the study of science. Okay, so what is this enthalpy? Enthalpy means, whenever I say enthalpy, it means I am talking about the heat. Okay, so enthalpy in thermochemistry means whichever reaction is occurring, the amount of which is involved in the reaction is known as the heat of reaction. Okay, so enthalpy is your heat, and heat energy is involved whenever a physical state of a substance is changed. As we always say that for chemical reaction, when we are heating the content, when we are warming, means different type of in chemical reactions, we just take the we just say that heat is required, but you must know during the physical changes also heat is required. Let's see one example. Let's see, start with enthalpy of fusion. Fusion means melting, or just take the example of melting of ice. Okay, if you will keep this ice out of the freezer in a plate or in a glass or any container, you will find that it is melting. Naturally, this process should occur when we should provide heat, the ice should melt. Okay, but you can say that when we take out the ice from the fridge without giving any heat, it starts melting. That the answer should be clear to you. The temperature in freezer is what, and the temperature is room at what. So already temperature is higher in the room, so ice starts melting. Okay, so what happens, as we are just heating, the ice is getting heated, and when you will see the water which has been melted, okay, जो आइस मेल्ट हो रहा है और उसका जो पानी बनता जा रहा है, you will find that it is also at 0 degree centigrade. The temperature will not at all change till all the ice melts into liquid, whatever the room temperature may be. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बर्फ़ जब तक पिघलती रहेगी, उसका पिघल नहीं जाएगी, उसके लिक्विड जो पिघलने से बन रहा है वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, चाहे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ भी हो. ओके, सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ भी हो, आइस जब तक मेल्ट होगी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमने तो हीट दिया आइस को, वेयर दिस हीट इज गॉन नाउ. तो वो हीट कहाँ गया? एक्चुअली हीट, विच एवर यू मे हैव स्टडीड अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आपको कुछ याद आ रहा है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है इस टॉपिक को, शायद क्लास 9th में पढ़ा होगा. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट, इफ़ यू विल से दिस इन हिंदी, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस लेटेंट हीट इज टर्म्ड इन हिंदी एज गुप्त ऊष्मा. गुप्त, गुप्त मतलब छुपा हुआ, ऊष्मा मतलब हीट. तो जो हीट अभी आइस ने लिया और मेल्ट हो रहा था, उसके अंदर वो कंजर्व है, छुपा हुआ है, और ये फ्यूजन में हो रहा है, तो इट कैन बी नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ यू कैन आस्क मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो इट इज़ वेरी क्लियर. जब हम ग्राम्स में बात करते हैं, ओके, 1 ग्राम ऑफ आइस जिस टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होके वाटर बना रहा है, तो वो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा. ओके, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम्स, और जब हम मोल्स की बात करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ आइस इज मेल्टिंग, तो उसके लिए जितनी उसने एनर्जी हीट लिया, दैट विल बी टर्म्ड एज
इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, जब हम ग्राम्स में कह रहे हैं तो लेटेंट हीट हुआ, जब हम मोल में कह रहे हैं तो वो हमारा इंथैल्पी हो गया। इंथैल्पी टर्म शुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आपको बताया गया है कि जब भी हम किसी ओपन कंटेनर में काम कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई सर्टेन लिक्विड है, इसको जो हमने हीट दिया, ओके, इसी हीट को, और ये जब ओपन कंटेनर पे काम हो रहा है मीन्स हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो हीट दिया गया एक कांस्टेंट प्रेशर पे, इसी को हम कहते हैं एंथैल्पी। सो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू व्हाट एंथैल्पी इज। The heat which is being provided at constant pressure is your enthalpy. Okay, so enthalpy of fusion, जो आइस आपका मेल्ट हो करके वाटर बना रहा है, उसमें जो हीट इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज़ योर हीट ऑफ फ्यूजन, एंड इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आप आइस को हम जब हीट देंगे तभी वो मेल्ट होगा, तो हीट हमेशा यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। ओके, सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड मेल्ट्स कंप्लीटली इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, and this enthalpy change under standard condition is called standard enthalpy of fusion. You have to remember one thing, that ये fusion जो हो रहा है, melting जो हो रहा है, this will always be at fixed temperature. ओके, आपका आइस हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा, एंड इफ आई विल स्टार्ट कंसिडरिंग डिफरेंट लिक्विड्स, इट इज़ द वैल्यूज़ आर गिवन इन द लिटरेचर, वी डोंट नीड टू लर्न इट, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इट विल बी मैंशनड देयर। तो जितने भी सॉलिड्स हैं, they have their own melting point, and at that own particular melting point only they melts. Okay, so this is your enthalpy of fusion. Now come to enthalpy of vaporization. What is vaporization? अगर हम बर्फ़ को लिए, बर्फ़ को हमने ठंडा किया, लिक्विड बना, तो दिस प्रोसेस इज अकरिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ व्हेन वी आर हीटिंग इट, अब ये 0 से आपको, इफ़ वाटर इज़ देयर, आई हैव टेकन, सो इट इज़ वाटर, तो मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जब तक वेपोराइजेशन प्रोसेस होता जा रहा है, liquid is getting converted into vapor, the temperature will not rise from 100 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर हमारा यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, चाहे हम जितना भी टेम्परेचर दे करके वाटर को बॉयल करते जा रहे हैं. नाउ द सेम रीज़न, वेयर द हीट इज़ गोइंग, हीट इज़, या दोनों ही केसेस में देखिए, हीट जो हम दे रहे हैं वो हीट कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, हीट इज़ गेटिंग यूटिलाइज इन चेंजिंग ऑफ फेज, इन चेंजिंग ऑफ फेज. आपका आइस से लिक्विड बन रहा, आइस में आपके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, तो उनके बीच में एक इंटरैक्शन फोर्स होता है, उस फोर्स को तोड़ने में और सॉलिड से लिक्विड बनाने में वो आपका हीट कंज्यूम हो रहा है. Like that only in heat of vaporization, when we are heating the liquid, तो उसका हीट नहीं, टेम्परेचर नहीं राइज कर रहा है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में बन रहा है. आपको पता है लिक्विड में मॉलिक्यूल्स सॉलिड से दूर होते हैं पर गैसेस से पास होते हैं, तो उनके बीच के भी इंटरैक्शन को तोड़ने में वो हीट यूटिलाइज हो रहा है और हमारा लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता जा रहा है. ओके, और जितना हीट यहाँ पे और ये दिया जा रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा. हमने दिया, मान लीजिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो हो रहा है बॉइलिंग के दौरान. इट मीन्स वेयर द हीट इज़ गोइंग, देन हियर ऑल्सो योर गुप्त ऊष्मा विल अपीयर, लेटेंट हीट विल अपीयर हियर ऑल्सो, एंड दैट विल बी नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. What you have to make the difference in latent heat and enthalpy? Latent heat we measure in grams, and enthalpy we just give the value in moles. This can be interconvertible. आप मोल्स में दिया है, आप उसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका ग्राम्स में दिया है, आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू. सो व्हाट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज, हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट विच अ पर्टिकुलर लिक्विड गेट वेपोराइज्ड. वाटर का आपको वेपोराइजेशन टेम्परेचर पूछा जाए, यू विल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड.
So the enthalpy change when 1 mole of a liquid is converted into vapors at its boiling temperature under standard pressure. What should be the pressure? 1 bar or 1 atmosphere is called enthalpy of vaporization, or it is also can be called as molar enthalpy of vaporization. This is vapors are getting formed. Now the third physical change is sublimation. I hope you remember what sublimation is. If I ask you to give examples, which example you will strike your mind first? Just think. Immediately you can say ammonium chloride. Okay. Next you can say I think you can say about iodine. Next, phenolphthalein balls, the balls which are kept with your winter clothes, your odonil. These all are the example of sublimation. What is sublimation? A solid is getting converted into gaseous state without coming in liquid state. Means आपका solid directly gas form में change हो रहा है, वो liquid के form में नहीं आ रहा. अभी अभी हमने just पहले देखा ice melt होके water बनाया, फिर जब हमने उसे heat किया तो वो हमारा vapors में form हो गया. But जो solid liquid state में नहीं आते हैं, directly gaseous phase में चले जाते हैं, that is उन substances को हम sublimate कहते हैं, and the process is known as sublimation. So what should be the sublimation? The enthalpy change when 1 mole of a solid substance is converted into vapors without melting at a temperature below its melting point at 1 bar pressure is called the molar enthalpy of sublimation, and under standard conditions this enthalpy change is called standard enthalpy of sublimation. Okay, so this was all about your phase transformations in which the enthalpy change was occurring. Okay, next I will discuss in other lecture about different enthalpies. Okay, thank you so much children.